Sociology, where we are going to begin with the second chapter, and somewhat some topics have been covered in the previous class. Today we are going to cover it more. So we are going to begin the lecture, and as we know that in the first aspect, which was talking about only women's and children's and the lower caste, ठीक है? That point is further elaborated by Satish Sabarwal. What is the name? Satish Sabarwal further elaborated the class, and he simply said that when I am talking about the first aspect of cultural change, it simply says that it is talking about three aspects. First one is modes of communication, second one is forms of organization, and third one is nature of ideas. So if I am talking about the briefer part of this thing, beta, here we are going to talk about modes by which communication is possible, or how communication have been made easy, or you can simply say that by the effect of which communication between people from one place to another, or communication between people from one place to long distance, how it became possible. So this is called mode of कम्युनिकेशन. ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ अभी इसके बाद से हम एक लेंथ में चलेंगे. ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट वाज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Forms of organization simply means beta that whatever thing which have been used as a organization. संस्थाएं इसको समझते हैं, संस्था. जैसे बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, ब्रह्मो समाज बनाया गया, फिर क्या होता है कि वृद्धाश्रम टाइप की चीजें बनाई गई, फिर क्या होता है कि ऑर्फनेज बनाए गए, फिर क्या होता है कि आप जैसे ये उनको क्या कहते हैं बेटा, आपको कुछ किसी को बच्चे को पता है जिसमें वो अनाथ बच्चे रहते हैं, ऑर्फनेज ना. ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस जो उस टाइम पे काफी एक्टिव थे, और इन लोगों ने, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत वर्क किया इन सब चीजों में कि पब्लिक जो लोअर कैटेगरी में है या जिनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है उनको अप्रेज करने के लिए. दैट मींस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द लोअर कैटेगरी. About forms of organization beta, it simply means that what the various organizations have been made by the people for the welfare of the people who belong to the lower category or who don't have anyone to take care of. So that is called form of organization. इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे बेटा, बट एक ब्रीफ अप दे रहा हूं मैं आपको. फिर नेचर ऑफ आइडियाज. नेचर ऑफ आइडियाज का सिंपल सा फंडा बेटा ये है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग विद दिस टॉपिक, इट सिंपली मींस how to do the things in a better way. Yeah, if I am having some idea which is old or which is not very much developed, and if I got some new idea from you, I will implement into it to make my work more efficient and result oriented. Or you can simply say that the ideas which can make the things better and better, that is called nature of ideas. ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को भी डाउट हो तो प्लीज बोल दीजिए. किसी को भी डाउट है अभी तक तीनों पॉइंट पे? मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक कोई डाउट है? मेरे लालो, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत है अभी तक में? एनीथिंग विच इज क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम फॉर दिस? ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर. When I'm talking about modes of communication, तो सबसे पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन बेटा उस टाइम में क्या था? That is walking. ठीक है, या फिर बुल कार्ट. With the introduction of Western culture, changes आए. वॉकिंग और बुल कार्ट और साइकिल को छोड़ करके कुछ नया भी आया. What was the new thing which came into communication? Railways, ships. ठीक है बेटा, रेलवे एंड शिप केम इन फॉर मास मूवमेंट और बल्क मूवमेंट. मास मूवमेंट का मतलब हो गया फॉर ह्यूमन बीइंग, कि ज्यादा लोग एक टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मास मूवमेंट.
Bulk movement is not for human being, beta. Bulk movement is for transportation of goods from one place to another. Britishers laid down the railway track in India for the aspect of only one thing, and that was to carry away the goods which they used to collect from various places to the ports, and from port they use the ship for carrying all the goods at one time from India to Britain, so that the industrialization in that country can be more flourished, ठीक है, या फिर कह लीजिए more developed हो जाए. So this was the way. On the contrary, beta, another mode of communication also came into play where we used to transmit information. Beta audio off कर लीजिए please. ठीक है, तो अनदर मोड जो यूज किया गया, यहां पे मोड, अगर इन दोनों मोड में देखिए आप, तो हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम मूवमेंट ऑफ पब्लिक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बेटा प्लीज स्विच ऑफ द माइक, हुएवर इज यूजिंग द माइक प्लीज स्विच इट ऑफ. ठीक है, अब जो हम यूज करेंगे मोड जो है फॉर कम्युनिकेशन, इट इज टेलीग्राफ. टेलीग्राफ हम यूज करेंगे, और फिर आपको प्रिंटिंग प्रेस यूज करेंगे, एंड न्यूज़पेपर. See, these modes were used for communicating views or current affairs, whatever is taking out throughout the India or whatever is taking place throughout India. तो वो प्रिंटिंग प्रेस ऐसा नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस इज नॉट सेपरेट. प्रिंटिंग प्रेस इज यूज्ड फॉर टू मोड्स बेटा, वन फॉर प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स and somewhat various books according to the authors, and printing press was also used for printing newspapers, so that whatever current affair is going on in India on daily basis can be printed in a newspaper which can be scattered at one time all over the India. ठीक है, so that whatever is going on in India reaches to the people of India. ठीक है, telegraph is generally used by people. So for example, if I have to send some kind of message or whatever I am feeling about the family, I am just writing a letter and just doing it telegraph so that it can reach to my family member, and my family member can use it and understand what I need to say to them by words. So this is all we are saying about, that is modes of communication. I repeat once again, please my dear students who have joined late. Walking, bull cart, cycle. This was the oldest mode which was used in India, and when Britishers came to India, things or scenario also changed. What scenario changed? Railway came into role play, ships came into role play. ठीक है? And one important information, my dear student, with regard to history, that in 1914, first Ford vehicle, Ford car was used in Dehradun. ठीक है बेटा, इस टाइम पीरियड में एक जो है व्हीकल, पहली बार कार सिस्टम इंडिया वालों ने देखा, वो था फोर्ड की कार लेके आई गई थी इंडिया में इन 1914 बाय द ब्रिटिशर्स. ठीक है, और ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था देहरादून में. तो यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए बेटा. प्लीज अब स्विच ऑन योर माइक्स एंड प्लीज स्पीक टू मी. मेरे प्यारे बच्चों, केशव चंद्र, ठीक है बेटा, केशव चंद्र जी मूव कर गए थे बंगाल से, सर कि मैड्रास गए थे. ठीक है, फ्रॉम बंगाल टू मैड्रास. ठीक है, या मद्रास कह लीजिए. यहां तक समझ में आया. उसके बाद पंडित हरिप्रकाश, ठीक है ना, अब नहीं आ रही है, देखिए सर मेरी वीडियो नहीं आ रही है, जाने की सही चल रही है, चल रही है, आवाज आ रही है बेटा? इज द वॉइस क्लियर?
ठीक है, तो देखिए, तो ये जो चीजें दिखी नहीं वो देख लीजिए ध्यान से। केशव चंद्र जी फ्रॉम बंगाल मूव टू मैड्रास, एंड फिर पंडित रामाबाई ऑफ बंगाल मूव टू महाराष्ट्र। ठीक है, पंडित रामाबाई, ठीक है, और ये फिर इन्होंने कभी ट्रैवल किया, डिफरेंट स्टेट्स में भी ट्रैवल किया है, ठीक है। इस तरीके से these people who were renowned at that time moved from various places, from different places of their native place to different places of India wherever they have been called। मतलब कहने का क्या है कि जहां पे भी इन्हें बुलाया गया, अपने नेटिव प्लेस से वो दूसरे दूसरे जगह पे भी गए। बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक मेन एस्पेक्ट भी आया बेटा, क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, उनके बारे में बताने की जरूरत है, एक बार फिर से बता दूं? शुड आई टेल देम? एक बार रिपीट कर दूं मैं मिशनरीज के बारे में, जो इसी पार्ट में ही है बेटा, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में ही। शुड आई रिपीट इट या इट इज ओके? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज, अब रब कर दो इसे, शुड आई रब इट? अब इतना जरूरत, मैं नोट्स तो मैंने पहले भेज रखा आप लोगों के पास में, ठीक है, जिनके पास नहीं हो कृपया करके वो देख लीजिएगा कॉपी में अपने, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम चलेंगे आगे। यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा देखिए, सबसे पहले बनाया गया था ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज बनाया गया, ठीक है। सेकंड वाज आर्य समाज, ठीक है। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, See, when I'm talking about this part, forms of organization में बेटा देखिए, तीन forms of organization उस टाइम पे बनाए गए थे, ठीक है। वो forms of organization क्या थे बेटा? ब्रह्मो समाज था, आर्य समाज था, और ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस समाज बनाया गया था, इस टाइप में बनाया गया था। तो इनका मेन पर्पस क्या था बेटा? जब भी कोई समाज बनाया जाता है उस टाइम पे, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इट स्पेशली डील्स विद वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको डिफरेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी को, जो सोसाइटी के पार्ट हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो दीज पीपल ऑफ द वेरियस समाज यूज्ड टू कम इनटू एक्शन, और ये एक्शन लेते रहते हैं ताकि जो है लोग सिस्टमैटिक हो जाएं और एक सिस्टम से सोसाइटी में प्रिवेल करें, और प्लस अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करें, ठीक है। तो इसलिए ये समाज वगैरह जो थे ये बनाए गए थे। इनका मेन पर्पस था अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल हु आर वेरी मच सप्रेस्ड, या अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल हु आर ऑफ लोअर कास्ट, हु आर नॉट गिवन इक्वालिटी राइट, और जिनको रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलती थी, या जो लोग बहुत वीक थे उनको कैसे और ऊपर उठाया जाए, या कैसे उनको अप्रेज किया जाए। तो दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस थिंग। ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस का बेसिक अगर आप देखें तो लेडीज वर्ड देख रहे हैं, ये वर्ड का मतलब क्या था? इट सिंपली मींस दैट दिस ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस विल डील विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन हु वर वेरी मच सप्रेस्ड इन मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। Those ladies were given help by way of education, by way of some belongings, जिसके वजह से they were uplifted। प्लस उनको ये भी कहा गया कि you can have education also, but with the passage of time education के लिए और आपके लिए बेटर काम ये किया गया कि आप जितने भी बच्चे हमारे हैं, मतलब जितनी भी लेडीज हैं, वो जरूरी नहीं है कि घर के बाहर जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम को वो अडॉप्ट कर सकते हैं बाय व्हाट? बाय हैविंग एजुकेशन इन देयर हाउसेस। अपने घर में ही एजुकेशन ले करके वो एजुकेशन को गेन कर सकते हैं, और जब उनके एजुकेशन पार्ट कवर हो जाएगा तो वो इजीली सोसाइटी में आ करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि आप अच्छी तरीके जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी इज वेरी रिजिड
टुवर्ड्स फीमेल एजुकेशन, तो इसलिए जो है सर सैयद मोहम्मद जो है ही फाइट फॉर द लेडी दैट नो वी कैन प्रोवाइड देम एजुकेशन बाय हैविंग देम और प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन देयर प्रीमाइसेस, दैट मींस उनके घरों में ही ये एजुकेशन सिस्टम हम उनको दे सकते हैं। जिससे क्या होगा बेनिफिट बेटा, बेनिफिट उसको ये होगा कि वो लोग एजुकेट भी हो जाएंगे और उनके जो शरिया कानून है उसके अकॉर्डिंग वो घर से बाहर भी नहीं जाएंगे। तो दीज वर द वेरियस बोर्ड्स which always worked for the upliftment of lower caste, for the upliftment of women, for the upliftment of widows who were having kids but husband was dead. And these samaj also worked with us to eradicate evil practices which was in the society. Evil practices का मतलब बेटा क्या होता है बताएंगे, कोई बता पाएगा बेटा? What were the evil practices being done against the women at the एंशिएंट टाइम या फिर द सोसाइटी विच वाज ऑफ पास्ट? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा जो आप लोग के लिए खास करते हैं कि चाइल्ड मैरिज, ठीक है? चाइल्ड मैरिजेस अगर आज की डेट में होते तो शायद जो है लोग बहुत लोग की शादियां आज से हो गई होती, बट वो सिस्टम को जो है धीरे धीरे करके these समाज, these boards which have been made for the upliftment of the people of the society, इन्होंने वर्क किया और उन सारी चीजों को रिमूव करने की पूरी कोशिश की गई। That means these boards have been established or these samaj have been established for the upliftment of the people of the society who were suppressed or who were not given rights, and whatever the things which were evil or against the people of the society should be eradicated or have been eradicated by these samaj and the reformers who were working for the upliftment of the people. यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जी, तो यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे हम चलें, कुछ नया करते हैं विद द न्यू आइडियाज, ठीक है? विद द न्यू आइडियाज, दैट मींस नाउ द एरा ऑफ इंडियन ट्रेंड has started changing. Why? Because Britishers came into India, ठीक है? And when we talk about the Britishers, British community was the most advanced community of that time, where they provided equal respect to each and everyone who are there in the society, whether you are talking about females, whether you are talking about males, whether you are talking about girl child, whether you are talking about female child, everyone, even in terms of dressing also they were very much advanced, in terms of fooding also they were very much advanced, in terms of development also they were very much advanced. So when anything who is or which is very much developed, when it comes into another society, it scatters or sprinkles its impact on that particular society. So that is the thing with India also, and that's why India started changing with ideas of the West. कहने का मतलब क्या है कि बेटा जब वेस्टर्न पीपल इंडिया में आए या ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो वो अपने यहाँ से अपना कल्चर लेके आए। कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे सबसे एडवांस थे, सबसे डेवलप थे इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ लिविंग लाइफ, इन टर्म्स ऑफ फूडिंग, इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, ह्यूमन ट्रीटमेंट, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडी मतलब फीमेल चाइल्ड हो, चाहे मेल चाइल्ड हो, उनका जो ट्रीटमेंट था टुवर्ड्स एवरीथिंग वाज एडवांस। और द बिगेस्ट थिंग ब्रिटिशर्स के साथ में सबसे अच्छी बात थी या वेस्टर्न एरा की सबसे अच्छी बात बेटा ये थी कि वो रिस्पेक्ट करते थे इक्वल वुमेन्स की भी और मेंस की भी, ठीक है? और उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था द जेंटलमैन एंड लेडीज। आपने कभी गौर किया है एनी वन ऑफ यू कि कभी भी, देखिए आपको मैंने कई बार पहले एक्सप्लेन किया है कि जेंटल वर्ड इज नेवर यूज्ड फॉर द लेडीज। लेडीज के लिए कभी जेंटल वर्ड यूज नहीं किया गया। क्यों? कोई बता पाएगा? मैंने कई बार क्लास में बताया, कैन एनीवन? Yes, that is the main thing. Girls are born gentle. That's why gentle word is never used for the ladies or girls. ठीक है? तो ये एक ट्रेंड था। दूसरी बात ये थी गर्ल्स के रिगार्डिंग ये भी बोला गया है, they themselves are glamour. They know
there is no need for adding any glamour to girls. They are born glamour. ठीक है? That's why if you go in any kind of exhibition, ladies are there who increases the glamour of that particular staff or stall or that particular vehicle against which they are standing. So that's why you can simply say that gentleness and glamour is related to ladies by birth. ठीक है बेटा? तो ये टॉपिक था यहाँ पे, इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा इसलिए क्योंकि जो है आप लोग से रिलेटेड, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ आइडियाज में आगे देखिए क्या क्या आया। सबसे पहली बात लेडीज बेटा ये आया फ्रीडम और लिबरलाइजेशन। फ्रीडम एंड लिबरलाइजेशन मैं क्यों कह रहा हूं? लिबरलाइजेशन का सिंपल सा फंडा बेटा है टू सॉफ्टन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सॉफ्टन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एरा इन इंडिया, व्हाट हैपेंड दैट एज ब्रिटिशर्स thought that they are the best and they have implemented the best thing which they were having at them. ठीक है? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब सोसाइटी में when हम डीलिंग कर रहे हैं पीपल से तो लिबरलाइज करिए चीजों को, थोड़ा सा आसान बनाइए, इतने टफनेस रखने की जरूरत नहीं है। और फ्रीडम की अगर हम बात करें, फ्रीडम कुछ भी जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने जाके दीवार पे सिर मार दिया, नहीं, ठीक है ना? फ्रीडम का मतलब क्या होता है बेटा कि आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो पहन सकते हैं, जो आपका मन करे आप खा सकते हैं, जो फंक्शन आप सेलिब्रेट करना चाहे वो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। लिबरलाइजेशन रूल्स, जैसे गर्ल्स के लिए बहुत, जी बताइए, बोलिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। किसने बोला? दिव्यांशी ने आई थिंक, या किस? ओहो, from longer period of time कीर्ति came into role play, thank God। चलिए बेटा कोई बात नहीं, अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। At least the great students are coming back। दिव्यांशी, आप, पंखुड़ी, so फिर उसके बाद से हमारे यहाँ अंबिका, शिफा, these girls were the active members, but in meantime many of you have just left the class। प्लीज आ गए, अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बेटा ये था, इसके बाद में एक पॉइंट और आया था बेटा कि न्यू आइडियाज शुड बी एक्सेप्टेड। न्यू आइडियाज शुड बी एक्सेप्टेड, दैट मींस ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ डूइंग द थिंग्स शुड बी रिमूव्ड। दैट मींस जो हमारे दादा परदादा ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब पुराने समय से चले आ रहे थे। अगर हम कोई न्यू आइडिया लेके आते हैं, इफ वी ब्रिंग सम न्यू आइडिया, सर रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है, इफ वी आर ब्रिंगिंग सम न्यू आइडियाज, या हम उस चीज को और बेटर तरीके से कर सकते हैं, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग उसको मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि इट इज मेकिंग द थिंग्स मोर इजी। अगर एक तरीके से आप सोच के देखो, इफ वी हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम दैट ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ थिंकिंग, आज भी हम वहीं रह जाते। कहां रह जाते बताइए? वॉकिंग पे, बुल कार्ट पे और साइकिल पे रह जाते हैं। बट नो, एज सोसाइटी एडवांस्ड, न्यू आइडियाज हैव बीन इंप्लीमेंटेड एंड दोज आइडियाज हैव बीन सपोर्टेड, जिसके वजह से क्या हुआ कि चीजें मोर एडवांस होती चली गई। द थिंग्स स्टार्टेड एडवांसिंग। एडवांसिंग सिंपली मींस उसमें एक लेवल ऑफ ग्रोथ आना शुरू हो गया। अगर आप गौर करके देखिए, इफ यू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बाइक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्कूटी चलाया करते थे, मतलब हीरो बुक वगैरह चलती थी। थोड़ा और एडवांस हुए, बाइक का सिस्टम आया। बाइक के बाद से फिर थोड़े और एडवांस बाइक्स आए। फिर उसके बाद और एडवांस क्या हुआ? सुपर बाइक्स आ गए। उसी तरीके से पहले इंडिया में कौन सी गाड़ियां होती थी? एम्बेसडर, एम्बेसडर थी और पद्मिनी, ये दो गाड़ियां चलती थी। पर ये पब्लिक को लगा नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा थोड़ा ओल्ड होता जा रहा। तो फिर क्या नया आया? इंट्रोडक्शन किस चीज का हुआ बेटा? मारुति 800 मार्केट में आया। Why? Because of new idea. So with the passage of time, new ideas came into role play and they made the things more advanced. चलिए एक और पॉइंट बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है आज की डेट में, दैट इज मोबाइल सिस्टम।
मोबाइल फोन्स। इससे पहले मोबाइल वाले कितने बेटा, आपको मैंने एक बार भी क्लास में भी कई बार बताया कि पहले मोबाइल जो हुआ करते थे बेटा, नियर अबाउट दे वर हैविंग द लेंथ ऑफ दिस मच, दिस बॉटल, द लेंथ ऑफ मोबाइल इन 90s वर हैविंग दिस मच साइज, एक बॉटल के बराबर हुआ करता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स एडवांस्ड इन 2000 2001, जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे तो उसमें फिर मोबाइल छोटे छोटे आने शुरू हुए, सैमसंग लेके आए, सैमसंग ने छोटे छोटे मोबाइल इंट्रोड्यूस किए, फिर नोकिया इंट्रोड्यूस करके लेके आया छोटे मोबाइल्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम और एडवांस होते चले गए, फिर टच सिस्टम आ गया। टच सिस्टम में वो भी अलग पार्ट था बेटा, एक था रेजिस्टिव टच और एक था कैपेसिटिव टच, तो वो भी एक आइडिया था। तो रेजिस्टिव टच में दिक्कत व्हाट केम वाज दैट यू हैव टू रन इट बाय नेल्स, ठीक है, द रेजिस्टिव टच वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम। अब इन केस मान लीजिए दोस पीपल हु यूज्ड टू बाइट देयर नेल्स, what will happen to them? They will not be able to operate their mobile. So with the passage of time, one thing more advanced, that is capacitive touch. And in today's era, all the mobile companies are having what? Capacitive touch in their mobiles. So what is this? Because of new ideas, the advancement level from zero have come up and up, and we will live long, or how much we live at that time, you will see that more advancement will come, and the time is not away that you will be having a small mobile, you will fit it here, it will work according to your thinking, ठीक है। palm top वगैरह क्या है आज की डेट में, मोबाइल इज इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर, वेरियस वर्क कैन बी डन ऑन योर मोबाइल, ठीक है, लाइक एक्सेल, लाइक वर्ड पावर, लाइक क्या होता है कि पावर पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन द मोबाइल बिकॉज ऑफ व्हाट, न्यू आइडियाज एंड न्यू आइडियाज हैव बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं बेटा विद रिगार्ड टू दिस। आपने देखा होगा बेटा, आप लोगों ने तो बहुत छोटे छोटे पंखे देखे, वी हैव सीन बिग वन which were having this much big motor, this much big motor, this much big, that means equivalent to one big bhagona you can say, ठीक है बेटा। So this was the trend, they used to consume so much electricity that for operating those fans it becomes more expensive, but with the passage of time when things advanced, आज की डेट में ऐसे ऐसे पंखे भी हैं बेटा जो हल्के भी हैं, लाइट वेट हैं, चलते भी अच्छा, प्लस वॉइस नहीं करते, आवाज भी नहीं आती पंखों की, इतना बढ़िया इंजीनियरिंग उसमें कर रखा उन्होंने। द इंजीनियरिंग ऑफ दोज फैंस आर सो ग्रेट दैट दे डोंट मेक नॉइज, एंड आई थिंक ओरिएंट इज दैट कंपनी which used to do this act, that they will not make any kind of noise while they will be operating to give you air, ठीक है, यहां तक क्लियर बच्चों। अब देखिए उसके बाद में बेटा कुछ और चीजें आई, उसके बाद में कुछ चीजें और आई बेटा। अब आई क्या चीजें वो देखिए, एजुकेशन सिस्टम को एडवांस किया गया, ठीक, एडवांस किया करने का मतलब क्या, स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया, बुक सिस्टम लेके आया गया, प्लस अब ये भी कहा गया टू डेवलप द सोसाइटी एट एडवांस लेवल, द वुमेन्स ऑफ द सोसाइटी शुड बी डेवलप्ड और दे शुड बी एजुकेटेड, और they all other way around, they also said that if you want a developed society, or if you want the society to excel at great pace, it is must that you all should educate the female member of the family or females of the society। क्योंकि अगर आप गौर करके देखिए, फॉर एग्जांपल, जस्ट अ बेस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हम देखें, गौर करके देखिएगा कि अगर लेडीज पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो उनके बच्चे भी नहीं पढ़े लिखे होते, क्योंकि मैक्सिमम टाइम फादर घर पे नहीं होते हैं बेटा, मैक्सिमम टाइम हु इज एट द होम, मदर्स, ठीक है। और बच्चे किससे ज्यादा लगाव रखते हैं, जब वो छोटे रहते हैं, बड़े होने पे तो बाइफरकेट हो जाते हैं कि मम्मा मेरे को ज्यादा प्यार करते तो आई विल गो विद मम्मा, फादर मेरे को ज्यादा लाइक करते तो आई विल गो विद फादर, ठीक है। गर्ल चाइल्ड जनरली क्या होता है कि फादर से ज्यादा लगाव रखती हैं, और मेल चाइल्ड जितने भी वो अपने मम्मा से ज्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों में अलग बात है, लगाव अलग बात है, बट एजुकेशन की अगर आप बात करिए तो जनरली मम्मा घर पे रहती हैं, और वही एक्चुअल में आप 6 क्लास तक वही पढ़ती हैं आपके साथ, आप नहीं पढ़ते हैं, दे यूज्ड टू स्टडी फॉर यू, ठीक है। अब वो अगर एडवांस नहीं होंगे तो आपका बेस कभी मजबूत नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई द न्यू आइडिया इज स्पेशली फोकस्ड ऑन द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को किसके एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया इन्होंने बेटा,
बताइए एजुकेशन सिस्टम में किसके फोकस किया? ये फीमेल्स के ऊपर, जिस तरह दिव्यांशी ने बोला, क्योंकि उसकी आवाज पता चल जाती है, क्लैरिटी थोड़ी सी कम रहती है तो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम में बेटा मेन फोकस यही था और कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे किसको? लेडीज को, क्योंकि वही एक ऐसे लोग हैं जो आपकी सोसाइटी को मैक्सिमम पेस प्रोवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगा जब आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। और बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे? बेस मॉडल कैसे मजबूत होगा उनका? बाय द हेल्प ऑफ मदर्स और द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है बेटा, इसके रिगार्डिंग बेटा एक चीज और अच्छा किया गया उस टाइम पीरियड में बेटा, मैं आपको बताता हूं। ज्योतिबा फुले, JYOTI, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले बेटा इनकी खासियत ये थी कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, स्कूल फॉर गर्ल्स। दिख रहा बेटा? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले क्या बोलते सर?